So yeah, so we'll continue this topic. Okay, दो लेक्चर में अभी तक हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस ही किया है. Okay, in our last lecture we have gone through some standard results as far as integration is concerned. Okay, so one of the result is generalized rule of biparts. Then the integration of e raised to x. Okay, क्या क्या आपने लास्ट लेक्चर में लर्न किया है? One is the first is what generalized rule of biparts. Generalized rule of biparts. Okay, so can anyone tell me that what is that rule? Integration of uv dx is equal to u into v1 minus u into v2 and so on. Okay, so how you decide your u function? Okay, that part I have added in that ppt, so that I will share you today. How you decide your u function and how you decide your v function. So is the other function, though there is no condition for this, but how you decide your first function? Function derivative vanishes. ठीक है, that will be your first function. Okay, तो ये एक रिजल्ट अभी इमीडिएटली हमें आज के लेक्चर में यूज़ करना है. नेक्स्ट इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax sin bx dx. Okay, you can write the formula for this. Also the integration of e raised to ax cos bx dx. ठीक है, I will write for any one case. Just let me write for first. Okay, what is this? sin x e raised to x sin bx का रिजल्ट क्या है? अब ये मैंने इनफाइनाइट इंटीग्रल के लिए दिया है, बट एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर इट फॉर अ डेफिनेट इंटीग्रल. सो मतलब अगर फॉर्मूला देना ही है तो मैं आपको इनफाइनाइट के लिए दे देता हूँ, क्योंकि आगे भी कुछ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन आने वाले. सो वेरी यू नीड दिस फॉर्मूला. ठीक है, एंड अगर डेफिनेट लिमिट आ जाता है 0 to π, तो वही टर्म आपको एक क्लोज ब्रैकेट में सारी चीज़ें रखनी है और कैलकुलेट फॉर अपर लिमिट माइनस कैलकुलेट फॉर लोअर लिमिट. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर e raised to x sin bx dx? So that so this first term is similar. A square plus b square. What is in a bracket? E to the power a. A sin जो गिवन है वही, जो गिवन है वही, और ये आपका b cos आने वाला है, बस आपको साइन याद रखना है. And as we know that the cos function is negative in the integration, so just give the minus sign. And in a similar way you can write down this third. ये एक पार्ट हमने देखा था और एक पार्ट था what is the value of sin n pi, where n is the integer or natural number. Yes, 0. ठीक है, so this value is always 0. And what is the value of cos n pi? minus 1 raised to n. Yeah, so if n is even, you will get one value. If n is odd, you will get the minus one value. Okay, so I think this is enough. Okay, to start with the Fourier series. Okay, and now how I define actually the Fourier series? Can anyone tell me the definition of Fourier series and what are the conditions? कैसे सारा वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. Can anyone tell me that? So if I given a function f of x, okay, which is a periodic function, तो इस कंडीशन के लिए ज़्यादातर आपको एग्जाम में इस फॉर्म में वो गिवन होता है x प्लस टी की जगह पे कुछ तो नंबर होगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, इफ दिस कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इंप्लाइज योर गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन. आपको वहाँ चेक नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन में हमें पीरियोडिक फंक्शन का पार्ट चेक नहीं करना है. इट इज ऑलरेडी गिवन. डिरिक्लेट कंडीशंस आर आल्सो ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ठीक है, तो उस पर आपको नहीं जाना है. सो वी हैव गिवन वन फंक्शन विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन विच सेटिस्फाइज द डिरिक्लेट कंडीशन एंड इट इज डिफाइंड ऑन सर्टेन इंटरवल. ओके, सो ऑल्सो वी हैव गिवन द इंटरवल like say c to c plus 2l. Okay, so under this case we can write the Fourier series expansion of this given function. So can anyone tell me that what is that formula? यही एक formula आपको बस याद रखना होगा. Yes, can you just try to write the expression? a naught by 2. Very good. N equals to 1 to infinity. Bn cos Yes, n pi x by l L. Very good. And plus bn sin n pi x by l. sin n pi x upon l. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सो दिस इज योर मेन रिजल्ट. आपको एक्चुअली इस पर सब कुछ वर्कआउट करना है. एंड इन दिस केस यू कैन सी दिस ए नॉट है ना,
this a naught, this an, and this bn. Okay, these are the unknowns here. If I calculate these values, we will get the Fourier series expansion of a given function. So these are the unknowns here, and these unknowns are actually called as the Fourier coefficients. So this a naught, an, and bn, these are actually called as the Fourier coefficients. ठीक है, and how you calculate those Fourier coefficients? So for that we need to use the Euler's formulae. ठीक है, ये भी सारे रेडीमेड गिवन ही है आपको. So use the Euler's formulae. ठीक है, so from where you will get a naught is equal to 1 by L C2 C plus 2L. okay, f of x dx. ठीक है, then an is equal to 1 by L C2 C plus 2L. what is formula for this? an का क्या फॉर्मूला है? यही टर्म याद रखना है, बस an की जगह पे f of x रखो. so f of x cos n pi x upon L into dx, and the final formula, that is bn, is equal to 1 by L C2 C plus 2L f of x into sin n pi x by L into dx. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में दिस वे ऑलरेडी completed in our last lecture. Okay, now I will take one simple example on all this part. Okay, सर तुम्ही रेकॉर्डिंग चालू नाही केली वाटतं. केले ओके. stop recording. Okay, yeah. So now I will give one simple example in this PPT. So the examples are a little bit lengthy, so I will change all those examples. तो जितना मैं ले रहा हूँ आप उतना भी करते तो you can easily complete those questions. Those you can directly consider as a homework. Okay, whatever the questions are given in the PPT, that you can consider as a homework. Okay, so yeah, so let me take one simple example. Now आप भी मेरे साथ solve करो. Okay, sit with one rough page or and pen. Okay, and just try to solve this example. Okay, so the first question: find Fourier series expansion of f of x is equal to x. f of x is equal to x, where f of x plus 2 pi is equal to f of x define on the interval 0 to 2 pi. ऐसे फॉर्म में गिवन होता है, या तो ऐसे फॉर्म में भी गिवन होता है 0 x less equal 2 pi. ठीक है, it doesn't matter whether you take strictly less than or less equal. Okay, that will not affect. Yeah, so क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो आप फोरियर सीरीज के सारे क्वेश्चन में एट द एंड आपको बस क्या चाहिए. ओके, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि सारे फंक्शन में, सारे क्वेश्चंस में ऑल दोज गिवन फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन. फर्स्ट पार्ट, ऑल दोज गिवन फंक्शन सैटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशन. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो वहाँ पे स्पेशल मेंशन नहीं होगा. अगर मैंने क्वेश्चन आपको ये बोला है कि फोरियर सीरीज कैलकुलेट करो, इट मींस बाय डिफॉल्ट दैट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन, बाय डिफॉल्ट दैट फंक्शन मस्ट सैटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशन. तो वो पार्ट अभी आपको सिलेबस में है ही नहीं. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. ओके, अंडर विच केस यू कैन राइट द फोरियर सीरीज. नाउ ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मतलब जैसे आपको समझ में आता है कि फोरियर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, सो फ्रॉम दैट क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द फंक्शन. आपको बस दो चीज़ें चाहिए कि व्हाट इज आवर फंक्शन एंड व्हाट इज आवर इंटरवल. इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है टू राइट द फोरियर सीरीज. तो आपने क्या किया है, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जस्ट राइट डाउन द फंक्शन एंड इंटरवल. ओके, सो ये तो क्लियर है कि आपको यहाँ पे फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए ये सारे रिजल्ट्स है, ऑयलर फार्मूलेज है. ठीक है, बट इन ऑयलर्स फार्मूलेज में आपको यल दिखाई दे रहा है. ओके, मतलब बिफोर आई स्टार्ट, ओके, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल. तो इन दिस केस हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, मैं आपको पहले फार्मूला दिखाता हूँ. ये इन जनरल फार्मूला है. इंटरवल अगर ये आ जाती है C2 C plus 2L, तो ये आपका फार्मूला है. करेक्ट. ओके, लेट मी राइट इट अगेन हियर, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ. सो इफ दिस इज माई इंटरवल, सो या मैंने यहाँ पे कॉपी किया. इफ दिस इज माई इंटरवल, है ना, देन दिस बिकम द फोरियर सीरीज. अब इस केस में आप मुझे बोलो हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू क्या है? सर इंटरवल कंपेयर करके. करेक्ट, वेरी गुड. तो सिंपल लॉजिक क्या है कि ये इंटरवल इससे कंपेयर करो. दिस इज फॉर अ रैंडम इंटरवल, दिस इज फॉर अ जनरल इंटरवल. जस्ट कंपेयर दिस टू इंटरवल. ठीक है, सो इफ आई कंपेयर द इंटरवल C2 C plus 2L with the interval 0 to 2 pi, okay,
what I will get here, I will get c is equal to 0 and I will get c plus 2l is equal to 2 pi. So if I put the value of c equal to 0 in second equation, I will get 2l is equal to 2 pi and that implies my l is equal to pi. फर्स्ट पार्ट क्लियर है, क्योंकि ये ही आपकी दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन एवरी गिवन एग्जाम्पल. आपको पहले एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एल करेक्ट आता है तो ही आगे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट आने वाले, अदरवाइज मतलब टोटल कैलकुलेशन आपका रॉन्ग वे में जाएगा. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? मैंने क्या किया है, जो भी गिवन इंटरवल है सी टू सी प्लस 12 से कंपेयर करो, सी एल की वैल्यू कैलकुलेट करो. अभी आपको मतलब ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद ही हो जाएगा कि 0 to 2 पाई में एल की वैल्यू पाई आ जाती है. ठीक है ना. यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट मतलब just how to compare this to interval. What happen if I consider the interval minus pi to pi? Can anyone tell me what is the value of L in this case? कंपेयर करके आप मुझे बोल दो, ओरली कैलकुलेट करो. L की वैल्यू pi. So what is value of PL in this case? pi. हाँ, pi. ठीक है. एक और मैं आपको लॉजिक देता हूँ इसके पीछे. ठीक है, यल बेसिकली क्या होता है, आप अगर पीरियड कैलकुलेट करते हो ना, फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट करते हो ना, उस पीरियड को 2 से डिवाइड करना है. अभी आप मुझे ये बोलो, इफ दिस इज माय इंटरवल 0 to 2 pi इज माय इंटरवल, व्हाट इज माय पीरियड? एक कॉमन इंटरवल पे अगर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, दैट फंक्शन इज माय पीरियोडिक फंक्शन, तो वहां से हाउ आई कैन कैलकुलेट पीरियड. पीरियड क्या होता है उस केस में? If AB is my random interval where on which I have defined my given function which is a periodic function, then what is my period? b minus a. B minus a, very good. ठीक है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है ना, तो जो भी गिवन इंटरवल होगी ना, वो उस पीरियड की लेंथ होगी. सो b minus a gives you the period. तो यहाँ पे 2 pi is the period, just divide by 2, L equal to pi. Quick way. यहाँ पे क्या होगा आप देखो, what is my length? Minus pi to pi. What is my length? Pi minus pi. So that become 2 pi divided by 2, L become pi. Okay, तो L की बेसिकली वैल्यू क्या है? इन जनरल L इक्वल टू दिस. Am I correct now? Yes sir. ऐसे रिजल्ट आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेंगे. सो दिस इज मतलब ये चीज़ें आप याद रखो. मैंने ऑल पॉसिबल वेज से आपको एक्सप्लेन किया है. नहीं समझ में आता सी टू सी प्लस 2 से जाओ, ये नहीं समझ में आता तो ये क्या अप्रोच है. ठीक है, बट आपको एट द करेक्ट अप्रोच से L कैलकुलेट करना है. ओके, एंड नाउ विल टेक वन मोर सिंपल एग्जांपल. आप उस केस में मुझे यल की वैल्यू बोलो, तो आई थिंक दिस मच प्रिपरेशन इज इनफ. व्हाट अबाउट दिस? बोलो, व्हाट इज माय यल इन दिस केस? अभी क्विकली होना चाहिए. 2. ठीक है, इफ आई कंसिडर हियर से 2 to 4, व्हाट इज माय यल हियर? 1. ठीक है, तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया. सो इतना कुछ इंटरवल कंपेयर करने से भी मतलब करके भी जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो यू विल गेट यल नाउ. एंड नाउ मतलब फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है कि आपको पहले यल कैलकुलेट करना है, एंड उसके बाद मतलब इन थ्योरी एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दैट फार्मूला. जनरल फार्मूला पहले लिखो, देन कैलकुलेट यल. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यल इन दिस फार्मूला, सो दैट गिव्स यू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका एक्स ही है. ओके, सो हियर माय गिवन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो आप चाहो तो लिखो यार, स्किप करते तो भी चलेगा. ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to infinity इन ब्रैकेट an. क्या आने वाला है यहाँ पे? इफ आई पुट l इक्वल टू पाई, यस, cos in bracket what? nx only, so that l will get cancel, है ना. so bn sin nx, तो ये एक्चुअली आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, अभी इसमें बस आपको क्या करना है, इन दिस पार्ट जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a नॉट, an एंड bn. ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करो, यहाँ पे पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर. दैट गिव्स यू द फोरियर सीरीज ऑफ x वेयर f of x इज इक्वल टू x. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फार्मूला, a नॉट, है ना. सो a नॉट का फार्मूला क्या है? a नॉट इज इक्वल टू 1/l. पहले मैं जनरली फार्मूला लिखने वाला, c2 c प्लस 2l f of x dx. अभी आप बोलो वैल्यू पुट करके. यस, एवरीथिंग इज देयर. यस, बोलो एनीवन. 1 what? 1 pi. Pi. Then इंटीग्रल इंटरवल क्या है? ये इंटरवल ही है ना, c2 c प्लस 12 मतलब गिवन इंटरवल. तो इंटरवल क्या है? 0 to 2 pi. pi. फंक्शन इज x. x dx. ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेट दिस. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाय 2, 0 to 2 pi, दिस 1 by pi एज इट इज, है ना. 1 upon pi as it is, which is equal to 1 by pi
first just put the upper limit, that become 4 pi square by 2, and now lower limit is 0. So what is my final answer? 2 pi. 2 pi. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट, और ये आपको एग्जाम में आने वाला दिस कैलकुलेशन। सेम एग्जाम्पल होगा। ओके, मैं एग्जाम में आपको क्या दे सकता हूँ, जस्ट कैलकुलेट ए नॉट। ठीक है, तो ये पार्ट मतलब ये क्वेश्चन है ही क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, फंक्शन चेंज होगा बट एट देन आपको ए नॉट कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आना चाहिए। नाउ लेट मी गो विद द सेकंड वैल्यू ए एन। द फॉर्मूला इज लाइक दिस, 1 by L C2 C plus 2L then f of x into cos n pi x बाय एल। यह भी आपको मतलब यही भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता कि ये क्या चेंज होता है। ये जो रिजल्ट ना इसमें ए एन की जगह पे एफ ऑफ एक्स आता है, तो आप डायरेक्टली भी एन एक्स लिखते हो ना तो भी करेक्ट ही है। ओके, डिपेंड ऑन यू, आपको कैसे उसको हैंडल करना है। नाउ चलो पुट करो वैल्यूज। सो बोलो 1 by 0 to pi। हाँ बोलो x into cos एल इक्वल टू पाई पुट करके एन एक्स ही मिलने वाला है dx। अभी आपको इसके आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग जनरलाइज्ड रूल ऑफ। ठीक है, so that is important part. Okay, now you have to solve this integral by the generalized rule of by parts. To use the generalized rule of by parts, what is my first function and what is my second function? X is the first function. डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद जीरो होने वाला है, so that I will denote it my first function. This become my second function, and I know the formula for मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला क्योंकि आपको मैंने बोला कि इस केस में क्या होता है, बस फर्स्ट टर्म याद रखना है, एंड बाकी केसेस में बस आपको फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना है। ओके, तो अब देखो इसके आगे कैसे लिखना है। सो 1 by pi, now just give a close bracket. Okay, what is the first term of generalized rule of by parts? क्या होता है फर्स्ट टर्म, u को वैसे रखना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या है, साइन माइनस नहीं आता, साइन nx अपॉन n। ये बस टर्म आपको अच्छे से लिखना है। इसके आगे क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो, एंड जस्ट गिव द अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन। ओके, सो कैन यू टेल मी माय नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 साइन x का इंटीग्रेशन nx अपॉन व्हाट, n स्क्वायर। ठीक है, हाँ, सो एंड देन दिस कंप्लीट एंड योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 pi। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 1 का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में 0 होने वाला है, सो नो नीड टू राइट दैट नेक्स्ट टर्म, है ना। तो यहीं पे आपको स्टॉप करना होगा। इसके आगे आप चाहो तो इसमें साइन का सिंप्लीफिकेशन आप करो, बट मैंने आपको पहले क्लियर किया है, इमीडिएटली इन फर्स्ट स्टेप डोंट एडजस्ट दिस साइन हियर। नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, बाद में आप जब मतलब ज़्यादातर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। दैट विल मतलब उससे कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो जाती है, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो दिस बिकम नाउ x साइन nx अपॉन n, करेक्ट, एंड देन माइनस माइनस प्लस cos nx upon n square, limit are from 0 to 2 pi. Okay, okay, now we'll put these values. So 1 by pi, बोलो, if I put here 2n pi आने वाला है, what is value of 2n pi? 0 sin into k, sin k pi is always 0. So this first, okay, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये now I will put the upper limit. So this first term is 0. नेक्स्ट टर्म में बोलो क्या लिखना होगा, cos 2n pi 1 क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो दैट गिव्स यू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस ये रिजल्ट, ये कौन सा रिजल्ट यूज किया जिनको नहीं पता है ना, साइन n pi इज हमेशा 0 एंड cos n pi इज माइनस 1 raised to n, दोज हू डोंट नो। नाउ पुट द लोअर लिमिट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, x0 तो 0 ही आने वाला है, सेकंड में क्या होगा, फटाफट सेकंड, cos 0 is 1। ठीक है, यू कैन कंप्लीट दिस ब्रैकेट। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, अपर लिमिट का पार्ट, लोअर लिमिट का पार्ट। इससे क्या होगा कि आपको क्लियरली स्टेप्स मतलब साइन की मिस्टेक नहीं होगी। दैट गिव्स यू 1 by pi। नाउ जस्ट कंप्लीट दिस, 1 upon n स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर, क्या आंसर आने वाला है, 0।
Zero. आंसर इज 0। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ कम टू नेक्स्ट, अभी बी एन कैलकुलेट करते हैं, द लास्ट टर्म। सो बी एन इज इक्वल टू 1/L C2 C plus 2L f of x into sin n pi x upon L into dx. Now put all these values, so you will get here 1/pi 0 to 2 pi f of x is x, क्या आने वाला है यहाँ पे, sin in bracket nx dx। अभी सिमिलर अप्रोच है, बस साइन की जगह पे कॉस की जगह पे साइन है, तो सेम टाइप का, ये दोनों इंटीग्रेशन सिमिलर ही आते हैं, ओके। बस साइन की जगह पे कॉस इतना ही चेंज होने वाला है। सो आई विल डू इट क्विकली। सो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, कॉस nx अपॉन n। नाउ गिव दी माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से क्या आने वाला है, माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर। इज दिस करेक्ट? चेक करो आप। Yes, sir. ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट्स नहीं आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे तो आप मुझे बोल दो, तो मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ ये बाय पार्ट्स रूट, ओके। बट यही है ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। सो दैट गिव्स मी 1/pi। इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस, otherwise you can directly put the upper limit. So minus x cos nx upon n minus minus plus sin nx upon n square and 0 to 2 pi. So 1/pi. Now just put the upper limit. Yeah, बोलो cos 2n pi that become 1, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, minus minus 2 pi upon n. What about this next term? 0 0. Good. Now put lower limit, x is 0, 0 second term भी 0, ठीक है। So your final answer is 1/pi in bracket minus 2 pi by n, and if you simplify this you will get what, minus 2/n ना, yeah, ठीक है। So the value of bn is equal to minus 2/n, हो गया। Now put all these values in our given formula, ठीक है। So what is the final answer, f of x which is equal to x is equal to a0/2। a0 क्या था, किसी को याद है, what is our a0? ठीक है। So a0/2, so 2 pi by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an, but an की वैल्यू क्या है, 0, an 0 into cos n pi x by l, अभी सॉरी cos n pi x नहीं, वो सॉल्व करके लिखा था ना, cos nx, हाँ, प्लस bn की वैल्यू क्या है, माइनस 2/n इंटू साइन एन एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारे वैल्यूज एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पुट किए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमने लिखा था ना, दिस फॉर्मूला, इस योर मेन इक्वेशन। तो ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू एज इट इज आप पुट कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज ऑल अबाउट फोरियर सीरीज। इतना ही है इसमें। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस summation n runs from 1 to infinity, that you can consider as a minus sign, and then 2/n sin nx, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एनी डाउट दिस क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सबको क्लियरली? Yes, sir. सो दिस इज द अप्रोच। नाउ अभी आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इस केस में क्या हो रहा है, मतलब दिस कैलकुलेशन यू कैन से दिस इज अ लेंथी कैलकुलेशन। उस क्वेश्चन में आपको ए नॉट भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ए एन भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ए एन का भी कैलकुलेशन अलग है, बी एन का अलग है, फिर जाके आपको फाइनली, जस्ट लेट मी सेव दिस फाइल, फिर जाके फाइनली आपको वो फोरियर सीरीज समझ में आती है। सो इट एक्चुअली दिस अप्रोच इंक्रीजेस द कैलकुलेशन। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा एक पार्ट देखना है कि जहाँ पे आपका ये कैलकुलेशन, मतलब इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन मेक दिस कैलकुलेशन मोर सिंपल। फॉर एग्जांपल, अभी 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं जिससे आप अपना कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हो,
बट इफ आई कंसिडर अ इंटरवल फ्रॉम -π टू π, ठीक है. नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. हाँ, अभी तक हमने क्या देखा है, ये फोरियर सीरीज है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. एंड कंपेयर विद द इंटरवल c2c + 12 है ना. एंड देन जस्ट कैलकुलेट a नॉट इज दिस, an इज दिस एंड bn इज दिस. ओके, अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. ओके, मतलब चलो जैसे कि 0 to 2π इंटरवल में आपको यहाँ पे तीनों वैल्यूज कैलकुलेट मतलब यू नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस 3 वैल्यूज, करेक्ट. देयर इज नो अदर वे फॉर दिस. बट अगर आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस c2c + 12 या अगर आपकी गिवन इंटरवल, डायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ, इफ योर गिवन इंटरवल इज ऑफ दिस टाइप, अगर आपकी गिवन इंटरवल इस फॉर्म में आती है, -l to l के फॉर्म में आती है, फॉर एग्जांपल लाइक से -π to π, फॉर एग्जांपल -2 to 2, फॉर एग्जांपल से -2π to 2π, अभी ये नहीं है, बट अगर इस फॉर्म में आपकी इंटरवल आती है ना, ओके, इन दैट केस, ओके, वन ऑफ द वैल्यू, ओके, एटलीस्ट वन वैल्यू, मतलब एटलीस्ट इन दोनों में से एटलीस्ट वन वैल्यू बिकम 0, एंड उससे आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा. तो ये एक पर्टिकुलर केस है. अगेन आई टेल यू, माई c2c + 12 ये जनरल केस है. दिस यू कैन अप्लाई फॉर एनी गिवन एग्जाम्पल फॉर एनी गिवन इंटरवल, ठीक है. बट अगर आपको आपका कैलकुलेशन सिंपल करना है एंड आपके पास -l to l की इंटरवल, इसमें दो चीज़ें, ओके, यू कैनॉट अप्लाई दिस लॉजिक फॉर द इंटरवल 0 to 2π. इज इट क्लियर? यू कैनॉट अप्लाई दिस लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल -l to l के फॉर्म में ही चाहिए, तब जाके ये a0, an एंड bn का कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है. इज दिस क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, कौन से केस में हमें ये सेकंड अप्रोच देखना है. अगर -l to कैसे होने वाला है आपको मैं शो करने वाला हूँ. आई विल गिव द प्रूफ ऑफ दैट पार्ट आल्सो. बट इफ माई गिवन इंटरवल इज -l to l, then only you can simplify that calculation, and to simplify that calculation, okay, we have to check whether that given function is even function or whether that given function is odd function. ठीक है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ. अब पहला आपने एक एग्जांपल सॉल्व किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अरे इस एग्जांपल में तो सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं एंड इट्स अ लेंथी कैलकुलेशन, ओके, दैट इंक्रीजेस योर टाइम, ओके. बट तो या ऐसे कोई केसेस है क्या जहाँ पे आपका कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है? यस, देयर इज अ वन केस वेर यू हैव टू कैलकुलेट एटलीस्ट वन वैल्यू, ओके, वेयर द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन फोरियर कोएफिशिएंट इज 0. इसमें क्या होने वाला है कि इन तीनों में से ना एटलीस्ट, मतलब एक केस में 2 वैल्यू 0 होने वाले और एक केस में 1 वैल्यू 0 होने वाली है, तो एटलीस्ट वन वैल्यू बिकम 0 अंडर दिस केस -l to l, ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर केसेस, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस इंटरवल के ऊपर आपको ऑनलाइन में भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्टली 2 वैल्यूज आपके 0 हो जाएंगे या डायरेक्टली 1 वैल्यू आपके 0 हो जाएगी, दैट सेव्स आवर कैलकुलेशन, ठीक है. बट एंड टू डिसाइड दैट we have to check whether our given function is even function or whether our given function is odd function. So now how this even and odd function will help us, okay, to determine the values of a0, an and bn, okay. So we'll start from the first case. अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है एंड आपके पास ये -l to l फॉर्म में इंटरवल है, ओके, एंड उसके बाद भी आपका फंक्शन क्या है, इवन है, ओके. अगर मुझे इन तीनों केसेस में एक एग्जांपल देना है ना आपको, लेट मी गिव दिस. If I consider a function to be x square defined on the interval -π to π, तो आपने फंक्शन चेक किया, -l to l के इंटरवल में इवन भी है, तो आप यहाँ तक आ गए, इस स्टेप तक. इसके आगे आप देखो, ओके. अभी मैं आपसे मुझे आंसर चाहिए. एक रिजल्ट मैंने आपको इंटीग्रेशन में दिया था, मैंने बोला था कि आई नीड दैट रिजल्ट इन इमीडिएटली इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. सो व्हाट इज दैट रिजल्ट? सारा कैलकुलेशन इस रिजल्ट पे डिपेंड है. इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx. What is the value of this? 2 times integration of 0 to a. So it become 2 times integration 0 to a f of x dx. when it is even. Even function. And it is 0 when it is Odd function. तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ठीक है. तो अब ये रिजल्ट हमें यूज करना है और हमें हर एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. सो जस्ट लेट मी इरेज दिस फ्यू पार्ट, ये बाकी अभी नहीं चाहिए. प्रूफ भी देता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा. या प्रूफ इज नॉट दैट मच लेंदी. हाँ, अभी आप बोलो, अभी ये फॉर्मूला -l to l के इंटरवल में मुझे कैसे लिखना होगा, बोलो. कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? एज्यूम करो कि आपने इस इंटरवल को यहाँ से कंपेयर किया है, c2c + 12, एंड देन आई हैव टू राइट डाउन जस्ट द वैल्यू ऑफ a0.
या सिंपली माइनस यल टू यल इस इंटरवल के लिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ यल, यहाँ पे यल की वैल्यू क्या होगी, इस केस में यल की वैल्यू क्या होगी, नहीं नहीं नहीं, यल की वैल्यू यल ही होगी ना, Yes, sir. हाँ एम आई करेक्ट, Value. हाँ क्योंकि यल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई भी एग्जांपल आने दो, लेंथ ऑफ दैट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपको मैंने पहले ही बोला। अभी इस इंटरवल की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल 2l डिवाइडेड बाय 2, तो यल की वैल्यू यल ही आती है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ चेंज होने वाला है क्या इसमें, नहीं होगा, इट बिकम 1/l। हाँ यहाँ पे क्या चेंज होगा, व्हाट आर द लिमिट्स, हाँ L2 minus माइनस एल टू एल। मैं अभी भी यही इसी लॉजिक से जा रहा हुआ, इवन फंक्शन आने के बाद क्या सिंप्लीफिकेशन होगा वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सो या एंड नाउ ओके, कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस, माइनस ए टू ए इंटरवल है, फंक्शन मेरा क्या है इवन है, तो आंसर क्या होने वाला है इसके आगे, व्हाट इज दिस, 2 times integration. इट इज 2 times, दैट इज 2/l, और नीचे क्या आने वाला है उस टाइम पे 0, ये नीचे का लिमिट 0 से रिप्लेस होता है, 0 to l f of x dx. So this is the simplification for a0. I will show you this immediately in this slide. Okay, now is this formula clear to everyone? ये मैंने कैसे लिखा है, is this clear? ये कुछ याद रखना। हाँ, now in a similar way, now you tell me the value of my next term, an की वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके बोलो, anyone can try this, आप खुद मुझे बोलो an की वैल्यू क्या आएगी, इस इंटरवल में यल की वैल्यू यल ही आती है, ये हमने कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ होगा, लिमिट्स माइनस यल टू यल है, एफ ऑफ, ये बाकी इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं ना, सो लेट मी जस्ट राइट इट एज इट इज़। 2 से मल्टीप्लाई होगा और 0 to l. तो मेरा एफ ऑफ एक्स इवन है, ये कॉस फंक्शन है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इवन इंटू इवन क्या होता है, राइट, देन ये इवन फंक्शन है, तो आंसर क्या होगा 2/l 0 to l f of x cos n pi x by l into dx। तो सेकंड वैल्यू आपकी क्या आ रही है, अगेन लेट मी इरेज दिस एंड विल शो यू हियर, ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आप फर्स्ट रिजल्ट से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड, bn 1/l माइनस यल टू यल f of x sin n pi x by l, what about this third value, हाँ क्योंकि करेक्ट 0, क्योंकि ये इवन है बट साइन आपका ऑड है ना, इवन इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, अगर ये ऑड आता है तो आपको पता है माइनस यल टू यल इंटरवल पे आंसर आपका डायरेक्टली क्या आ जाता है 0, ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, दिस इज यू कैन ट्रीट एज ए वन ट्रिक, कि अगर मेरे पास माइनस यल टू यल इंटरवल है ना, एंड अगर वो फंक्शन इवन है तो मुझे bn कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये आपको ऑनलाइन में आने वाला है। सेम क्वेश्चन होगा, करेक्ट, इंटरवल होगी माइनस यल टू यल के फॉर्म में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ bn, बोलो क्या आंसर होगा आपका 0। तो विदाउट कैलकुलेटिंग दिस, कैसे कैलकुलेट करना एक्सप्लेन किया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, बट विदाउट कैलकुलेटिंग डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, दिस वैल्यू इज 0, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चार्ट, ठीक है। अभी आप ऐसे ही इन अ सिमिलर वे, नाउ यू टेल मी द वैल्यू फॉर दिस नेक्स्ट केस, ठीक है, आप मुझे 1 by 1 बोलो, फिर मैं दिखाता हूँ, बोलो ए नॉट क्या आने वाला है, इमेजिन हियर सारे, इसमें इसको इसके जगह पे इमेजिन करो माइनस यल टू यल, हाँ बोलो व्हाट इज ए नॉट 0, एफ ऑफ एक्स इज ऑड, माइनस यल टू यल में आंसर क्या आता है 0, व्हाट इज ए एन 0, ये भी ऑड है, कॉस क्या है इवन है, बट ऑड इंटू इवन क्या आता है, ऑड आता है 0 डायरेक्ट, एंड व्हाट इज bn 2/l f of x. ये ऑड है फर्स्ट, एंड सेकंड भी ऑड है, एंड ऑड इंटू ऑड बिकम इवन, तो ये 2/l के फॉर्म में आने वाला है, सो लेट मी शो यू दैट, लेट मी इरेज दिस, हो गया, ठीक है, सो bn इज इक्वल टू 2/l 0 to l f of x sin n pi x by l dx, दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट, इस यूनिट में इतना ही है,
सॉरी यूनिट 3, इसके बारे कुछ नहीं जाना है आपको, ठीक है। इज दिस चार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब इसमें एक केस पेंडिंग है, इसमें एक केस पेंडिंग है, व्हाट इज दैट केस? ओके, मतलब मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ, हाउ यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। आपको बस मुझे आंसर क्या देना है कि इस इंटरवल से कंपेयर करके जाने वाले हो या इस इंटरवल से कंपेयर करके जाने वाले हो। आई जस्ट वांट द अप्रोच। मैंने आपको इस इंटरवल के लिए कंडीशन सारे मेंशन किए कि कैसे होता है इसमें, ये तो जनरल है, ये तो कोई भी एग्जांपल आप इस इंटरवल से कर सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to x, दिस इज द प्रोडक्ट फंक्शन, वो सारी चीज़ें है, और मैं आपको इंटरवल अभी आपको दे रहा हूँ -π to π। नाउ यू टेल मी कि कौन से इंटरवल से होगा, फर्स्ट से सॉल्व होने वाला है या सेकंड से सॉल्व होने वाला है? First, sir. फर्स्ट से। व्हाई? Neither on nor even. बिकॉज दिस फंक्शन इज, Not periodic. दिस फंक्शन इज Neither odd nor even. नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये इवन भी नहीं आता, ये ऑड भी नहीं आता, बट -l to l में बस इवन के लिए रिजल्ट है और ऑड के लिए रिजल्ट है, नॉट फॉर द रिमेनिंग केसेस। तो नाइदर इवन नॉर ऑड अगर आ भी जाता है तो ये सेकंड अप्रोच फेल हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ ओनली फॉर इवन, इट इज़ ओनली फॉर ऑड। तो फिर आपको फिर वही लॉजिक से जाना होगा, यही सारे रिजल्ट फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या जीरो आएगा, क्या नॉन जीरो आएगा, दैट वी डोंट नो, बट वी हैव टू सॉल्व दैट पार्ट। इज दिस क्लियर नाउ? इतना ही है, मैंने आपको बोला दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3। अभी आपको वो पूरा बुक भी रीड करते हो ना, तो उसमें आपको एट देन इतना ही समझ में आएगा जो अभी मैंने आपको जस्ट 5 to 10 मिनट्स में एक्सप्लेन किया है। नाउ यू कैन सॉल्व एनी रैंडम एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आने तो आपको मेथड पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। सो विल टेक वन एग्जाम्पल ऑल्सो, ओके। बट इज दिस क्लियर नाउ? इज देयर एनी डाउट इन दिस पार्ट? ऐसे कोई केसेस रिमेनिंग है? एनी डाउट इन दिस? टेल मी यस और नो। No, sir. Okay, now we are ready to solve any random example on this part, ठीक है। So discard this and yeah, again come to this and एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ इस पर। yeah, so let us take question number 2। आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2 इज लाइक दिस, फाइंड Fourier सीरीज expansion of f of x is equal to x square defined on this interval, ठीक है, and f of x plus 2 pi is equal to f of x, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है विच इज x square आपका फंक्शन है, डिवाइड ऑन द इंटरवल -l to l। ओके, ये इंटरवल पे ही सारा, मतलब आपको पता है कि फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला का डिसीजन आपका इंटरवल पे ही है। तो आपको मैंने पहले बोला है कि जो भी गिवन क्वेश्चन आता है आपको बस वहाँ से फंक्शन लिखना है। सो माय फंक्शन इज दिस, एंड आपको इंटरवल लिखनी है विच इज -π to π। तो आपको देख के समझ में आ रहा है ये -l to l के फॉर्म में, तो इसमें अगर मैं इवन चेक कर देता हूँ या इवन एंड ऑड का पार्ट अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर आई प्रोसीड to the Fourier series, let me check whether this function is even function or odd function। तो ये कौन सा फंक्शन है, Even. पता है। सो दिस f of x is even function। तो अगर ये फंक्शन इवन आ जाता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a नॉट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर या इवन आ जाता है। ओके, मैं एक और वैल्यू कैलकुलेट करके रखता हूँ। व्हाट इज यल हियर, यल की वैल्यू क्या है, ये फिक्स होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इवन फंक्शन है, इफ इट इज इवन फंक्शन, नाउ कैन यू डायरेक्टली टेल मी द वैल्यूज फॉर a नॉट, a n एंड b n। 2 by L. हाँ, सो बस क्या चेंज होने वाला है, 2 by l, और लोअर लिमिट क्या आता है, 0 to L. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इंटरवल का प्रॉब्लम नहीं दिया, इंटरवल के केसेस में आपको फिर ये अच्छे से देखना होगा, ओके, वो भी लेने वाला हूँ। सो दिस इज 0 to l f of x dx। इसका आता है 2 by l 0 to l f of x cos n pi x by l into dx and bn is directly 0, ठीक है। हाँ, तो अभी चलो 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो वेयर a नॉट इज इक्वल टू 2 by l की वैल्यू पाई 0 to pi, फंक्शन क्या यहाँ पे x square, ओके। सो जस्ट डू इट क्विकली। सो 2 by pi x cube by 3 रेंज फ्रॉम 0 to pi, ठीक है। सो दैट विल बी 2 by pi
upper limit is pi cube by 3, lower limit is 0. So what do you get here? 2 pi square by 3. Is this correct? Calculation आप check करो. Yes, sir. Okay. So 2 pi square by 3. ये हो गया फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? an का फॉर्मूला क्या है? 2 by l, बट l इज pi, 0 to l, सॉरी c2 0 to क्या है यहाँ पे? ये पाई. हाँ. देन ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूला है 0 to l है, बट l की वैल्यू पाई. हाँ. 0 to pi f of x is x square cos n pi x by l, that gives you nx only. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस. इसमें देखो. ठीक है. पुट करने के बाद 2 by pi, l की वैल्यू पाई, 0 to pi f of x is x square cos l की वैल्यू पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट दिस. वही मैंने नीचे लिखा है. ठीक है. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. या सो कम टू हियर नाउ अगेन एंड जस्ट solve this quickly. So 2 by pi close. Now first function बोलो, integration of second which is sin nx upon n, क्या आने वाला है आगे? Minus sin. Yes. Then 2x derivative of first, integration of second, that gives you n square. फिर आ जाएगा प्लस, फिर ये 2 एंड ये आ जाएगा minus, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई. ठीक है. अब ये थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना होगा. कैन आई पुट दिस डायरेक्टली, क्योंकि ये भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. अभी मैं डायरेक्टली अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने वाला हूँ. सो लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट फॉर अपर लिमिट. बोलो अभी वन बाय वन. फर्स्ट टर्म की वैल्यू साइन एन पाई 0. सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस प्लस plus 2x by 2 pi by 2 pi 2 pi by n square 2 pi by n square. n square cos n pi क्या होता है? 1 minus cos n pi. अभी मैं लिख लेता हूँ, आप सोच के बोलो क्या. minus 1, sir. Minus 1. 1 raised to n. हाँ. And now what is the next value? Sin n pi 0. So this is all about your first limit, upper limit. Now the minus sign. Calculate for lower limit. Sin 0 0. Next x की वजह से 0. Next sin की वजह से 0. 0. ठीक है. So this is your final answer. So your final answer is, so your 2 become 4 pi upon n square pi. What about cos n pi? क्या है Minus cos n 1 pi raised की to value? 1 raised to 1 minus 1 raised to n. So this is the value of a. सर cos 0 1 ना हाँ. देख राहिले की cos 0 cos 0. अरे हाँ, बट ये Sir, बराबर. मल्टीप्लाई में जब आप अपर लिमिट डालते हो ना, x की वजह से वो 0 होगा ना. आप कैलकुलेट करो, x इक्वल टू 0 इसमें डाल दो. cos हाँ, सर, हाँ. मल्टीप्लाई हाँ, में सर. 0 ना. ठीक है. हाँ सर सो दिस इज योर फाइनल आंसर. हो गया. फिर इसके बाद क्या करना है? तो bn का आपको पता ही है, a नॉट a नहीं कैलकुलेट करने थे, bn तो 0 ही है. अब ये सारे वैल्यूज फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करो. क्या है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला? f of x is equal to a naught by 2 plus summation n runs from 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l complete. Now just put all these values. a naught की वैल्यू क्या थी, याद है क्या? 2 pi square by 3. 2 pi square by 3. 3 ना. 3 2 pi square by 3 divided by this 2 as it is plus summation n runs from 1 to infinity. Okay, what is this an which I calculated here? I will just put this 4 pi minus 1 raised to n upon n cos l की वैल्यू पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा. cos nx, ये लिखने की जरूरत है क्या अभी? because n is 0, so that whole term becomes 0. This is your final answer. जो कांस्टेंट आप बाहर लेके आ सकते हो,
सो यहाँ पे होगा पाई स्क्वायर बाई 3। क्या क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या है? 4 pi n square minus कैंसिल हो रहा था 1 क्या? पाई कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ कैंसिल हो रहा है ना। pi pi cancel. हाँ तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। या हाँ सो क्या बाहर आ सकता है आपका? ओनली 4 इज़ द कांस्टेंट ना, क्योंकि बाकी सारे इसमें यन आ रहा है। So main. हाँ यन रन्स फ्रॉम 1 to infinity -1 raised to n cos nx upon n square. Is this correct? This is the Fourier series of x square. देखो इसमें कुछ डाउट्स है तो बोलो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये लास्ट पार्ट कैसे मैंने लिखा है बोलो। ओके नाउ दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है, यह आपको कल सॉल्व करके लेके आने। दिस आर दी एग्जाम्पल्स फॉर होमवर्क। 4 - x square, just let me show you last 2 to 3 minutes, हिंट देता हूँ and then we'll stop, ठीक है। हाँ आप मुझे बस बोलो कि क्या कैसे जाना है। 4 - x square 0 to 2 इंटरवल है। 0 to मतलब 0 to l इंटरवल के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। 0 to या मतलब 0 into एनीथिंग कैपिटल है या कुछ भी, ठीक है। आपके पास जो इवन एंड ऑड की केस है दैट इज ओनली फॉर -l to l। तो यहाँ पे क्या करना होगा? कौन से इंटरवल से सॉल्व करना होगा? ये C2 में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो f(x) आपके पास है C2 C + 2l से कंपेयर करके l की वैल्यू क्या आएगी? l इज 1, l इज 1, ठीक है। l1 लेके आप कंप्लीट करो, दैट कैलकुलेशन इज हियर, ओके, यू कैन चेक दिस। l इज 1, हाँ l इज 1, हाँ यहाँ नीचे देखो l1 की वजह से ये नीचे खत्म नहीं है, ठीक है। a0 यहाँ पे आपके पास है। यहाँ पे भी जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स उन्होंने यूज किया है, सेम लॉजिक जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड यू कैन चेक ऑल दिस कैलकुलेशंस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। सेकंड, ये इंटरवल के मैं आपको कल लेने वाला हूँ, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने स्प्लिट किया है, इंटरवल के सारे क्वेश्चन कल के लेक्चर में हो जाएंगे। सो ये फर्स्ट होमवर्क हो गया। सेकंड होमवर्क, अरे यार इतना लेंगे नहीं लेने ना दिस, ये भी कौन से मेथड से होगा? C++2l मेथड से होगा। अगेन दिस यू कैन टेक एज योर सेकंड एग्जांपल, सेकंड होमवर्क, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि इनिशियली सारे वैसे ही है। हाँ ये इंटरवल का स्किप करना है, इंटरवल के बस क्वेश्चन स्किप करने, और इसमें से भी आप सारे क्वेश्चन वो आइडेंटिफाई करो, ओके। दोज आर डिफाइंड ऑन 0 to l। हाँ अभी इसके आगे हमने क्या तक कवर किया आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, बट ये सारे प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है। हाँ, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) = x - x³ इन द इंटरवल -1 to 1। तो कौन से इंटरवल से आप करने वाले हो? -l to l से। बट उसके लिए क्या कंडीशन है? एक तो वो इवन चाहिए या तो ऑड चाहिए। है क्या उस फॉर्म में वो? ये कौन सा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है? ऑड फंक्शन है। पुट x = -x, यू विल गेट -x, और ये आ जाएगा +x³ that is nothing but minus into x minus x³ that is nothing but minus into f(x). तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो बस क्या कैलकुलेट करना होगा आपको? ओनली bn, एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। bn ही कैलकुलेट करो, विच इज 2/l 0 to l एंड दैट फॉर्मूला, ठीक है। सो ये आपको अभी ये इसमें आइडेंटिफिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दिस आल्सो यू कैन ट्राई। आई विल शेयर दिस पीपीटी। इंटरवल के छोड़ दो, ठीक है, इंटरवल के छोड़ दो, इंटरवल के कल लेने वाला हूँ मैं। हाँ ये भी एक एग्जांपल, x² का ये मैंने लिया ही है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली रेफर दिस, -π to π सेम इंटरवल पे ही मैंने लिया है। सो आई थिंक ये हो चुका है। एंड यू कैन रेफर सम एग्जांपल्स फ्रॉम हियर। x²/4 मैंने आपको क्या बोला था? अगर मैं x² का लेता तो आपको एग्जाम में 2x² का भी आ सकता है, ठीक है। देखो आप सेम फंक्शन है, बस इंटरवल उन्होंने चेंज किए। यहाँ पे भी π² - x², सारा x² का ही कॉम्बिनेशन है। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर अ प्रैक्टिस, ओके। यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। प्रैक्टिस से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ यू कैन पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स फॉर द अटेंडेंस एंड देन विल स्टॉप।